Risky stroke indeed. Switch it all the way to the cover boundary for 4. Informed batsman Pratik Patil off the mark with 4 and Sumit Kumar Temboli 4 without loss. Akshay Patil fam team, the famous Udyogpati. Another switch hit. This time once more ball is past the cover for 4. What a start. This is the great start from Pratik Patil. Again Ketan Matre. Both batsmen gets consecutive 2 men of the match. You can see there. What a great start from Pratik Patil. Tarzan of Temboli. Back to back 2 boundaries. His score is 8 for no wicket. And Ketan Matre in tremendous under pressure. There we watch Ketan Matre. Facing him Pratik Patil. 2 reverse shot. Bostu Pratik turning on the onside with the corner. They threw for 1. His score was up to 9 for no wicket. Sumit Kumar Temboli. This is the great start as far as time concerned, as far as late match concerned. Late night match concerned. 9 for no wicket. Ketan Matre now facing him Paresh Godatkar. The last match of night between Shelu Matawal and Kevni Dive. Tomorrow our schedule will be begin at 11 a.m. The match between Science Sport Kharbao and RK Mankoli. Ketan Matre. Both this time try to swing on the outside. Yes, he is out. First wicket has fallen now. Interesting to see in replay. Yes, nice decision from umpire. This is a very good decision in front of middle and leg. And finally, Paresh Godatkar on his way. Godatkar is out for duck and his score is 9 for the loss of 1 wicket. Sumit Kumar Temboli losing a toss batting first air. Finally, Ketan Matre claimed the breakthrough. Wicketkeeper having a word with Ketan Matre. New batsman. Oh, another fine delivery, but just missing the leg stump. White signal from umpire. 10 10 for the loss of 1 wicket. New man in Rohan Babre facing Ketan Matre. This is the high voltage match in Balya Mama Cup. This time a lovely looking drive, but just in the air. Well taken by the fielder in at mid-off, and finally Rohan Babre back to the dugout for 0. The uppish stroke indeed. Well taken, inches over the ground. Once more, Ketan Matre showing his class, consecutive 2 wickets. Consider so far 10 runs. You are watching the match between A1 Jodi Waklan and Sumit Kumar Temboli. New batsman in Kumar Bhoir is the new man in. The all-rounder of Temboli on number 4 position.
mix up over so far. Temboli lost 2 wickets, but 2 boundary also from Pratik Patil. Both was a reverse stroke. This time try to turning on the outside. Loud shot. Yes, he's out. Third wicket in this over. What a bowling from Ketan Matre, Kohinoor of Auckland. You can see there a full delivery. And finally, umpire raising his finger. That marks end of the Ketan Matre's over. Totally 10 for the loss of 3 wickets. एक ओवर की समाप्ति 10 रन 3 विकेट. अजय गरत मेरे साथ कमेंट्री में ज्वाइन होते हुए. अजय क्या ओवर चल रहा है? ये देखिए एडवोकेट राजेश पाटिल, संदीप पाटिल के नूर नज़र, आर्निक पाटिल को आप देख रहे हैं, नीलेश पाटिल और तेजस उर्फ तेजा. 1 ओवर 10 रन. क्या घटनापूर्ण हो रहा अजय, यहाँ पे पहली 2 गेंदों में 2 रिवर्स शॉट, दोनों चौके और उसके बाद 3 विकेट. और इससे पहले भी जो मुकाबला हमने देखा था एवन छोटी वाकलन का, उसमें भी केतन के ओवर की शुरुआत चौके के साथ हुई थी. 2 चौके लगे थे पहले 3 गेंदों पर, उसके बाद उन्होंने पलटवार किया था. देखिए वाकई में तेजा ने हमें काफ़ी समय दिया. तेजा नहीं तो मज़ा नहीं. 10 रन 3 विकेट. खेल की शुरुआत होती हुई और तेजस्वी सदन एंड से अब मोर्चे पे लगाया जा रहा है. गेंदबाज उद्देश, नए बैट्समैन शादाब शेख आए हैं. और शादाब शेख भी एकाएक पिक्चर में जब आए थे जब मापुली क्रिकेट धमाका 2019 खेला गया था. प्रतीक पाटिल की जिम्मेदारी बढ़ती हुई. स्विच हिट, ये तीसरा चौका है रिवर्स में. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त प्रतीक पाटिल. उनके बल्लेबाजी की उल्टे सुलटे शॉट्स बहुत अच्छे खेलते हैं. स्विच हिट किया, पहले स्टांस चेंज किया, ग्रिप चेंज की और इनफील्ड के ऊपर से बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट ये चौका. पहले ओवर में भी 2 चौके लगाए उन्होंने. प्रतीक बहुत अच्छे टच में है. हालांकि 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और यहाँ से प्रतीक का विकेट यदि चटकाती है एवन जोड़ी वाकलन टीम तो फिर काफ़ी आसान हो सकता है उनके लिए काम. 14 रन हो चुके हैं. कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, रन पूरा होता हुआ. इस वक्त सारे महाराष्ट्र की तरफ से दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ना किसी का इनाम हम अनाउंस कर सकते हैं, कमेंटेटर, ना कोई ऑल द बेस्ट. पार्टनरशिप बनाने का प्रयास यहाँ पर शादाब को भी कहीं ना कहीं करना होगा प्रतीक के साथ मिलकर, तब जाकर एक अच्छा टोटल यहाँ पर बनाया जा सकता है. उदेश, शादाब स्विच हिट खेलना चाहते थे. देखिए अल्ताफ शेख और शादाब शेख ये पारिवारिक शॉट है, उनका खानदानी शॉट है. जब तक वो स्विच हिट नहीं खेलेंगे उस रात सो नहीं पाएंगे. पहली गेंद को स्विच हिट करना चाहता, इस मरतबा हल्के हाथों से केवल टर्न कर दिया ऑन साइड में, ऑफ हिज हिप्स. 1 रन बना और 2 रन बने. बढ़िया सोच. दिस इज द स्मार्ट क्रिकेट. ऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स भी अच्छे खेलते हैं. अल्ताफ को भी हम देखते हैं कि वो भी सामने भी बहुत अच्छे खेलते हैं और साथ में स्कोर ऑफ द विकेट ऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स काफ़ी अच्छे खेलते हैं, लेकिन वो स्विच हिट जुनून है एक तरह से. शादाब ने भी पहली गेंद पर कोशिश की थी, चूक गए थे, लेकिन उसके बाद ये 2 रन जिससे उनका खाता खुला है. टीम का स्कोर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर. यस, बिल्कुल सही कहा आपने. इस गेंद के बाद बताऊंगा. ओ इस मरतबा गेंद फिर उसी शॉट को खेलने के चक्कर में आउट हुए.
देखिए आप कह ही रहे थे, मैं कह रहा था कि हर फैमिली की, हर खानदान की अपनी कोई आइडेंटिटी रहती है, चाहे क्रिकेट हो चाहे कुछ भी हो। ये देखिए फिर स्विच हिट खेला और फिर आउट हुए। अल्ताफ शेख को देखिए ना, इस शॉट पे उन्होंने कई मैचेस जीता है और कई फाइनल आ रहा है। इस समय तो मुझे नहीं लगता है कि यह स्ट्रोक बन रहा था, क्योंकि टीम की स्थिति नाजुक है, आपके पास समय भी है, 5-5 ओवर का मैच है, दूसरा ओवर चल रहा है और आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज भी है जो अच्छे फॉर्म में भी है, अच्छे टच में है। तो आपका उत्तरदायित्व यही था कि आप स्ट्राइक रोटेट करते, लेकिन यहाँ पर वो जुनून सिर पर सवार था स्विच हिट खेलने का और उसी चक्कर में आउट हुए हैं शादाब। नए बैट्समैन मंदार आए हैं, मंदार गोराटकर। यस, कल हमारा शेड्यूल ठीक 11 बजे शुरू होगा। साइंस स्पोर्ट खारबाव और आर के मानकोली आपको 11:15 बजे रिपोर्ट करना है। नए बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी को आए हैं मंदार, जबकि मजदार में कश्ती है। इस मरतबा चिप करते हुए इनफील्ड के ऊपर से बढ़िया स्ट्रोक है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी लगभग एक्स्ट्रा कवर वाइडिश में आए हैं, तब तक 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। स्कोर 19 रन, 4 विकेट। काफ़ी अच्छा शॉट सीधे बल्ले से खेला और सीधे बल्ले से खेलने का ज़रूर फ़ायदा मिलता रहता है। टाइमिंग अच्छी थी, कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया था इस स्ट्रोक पर। 2 ओवर की समाप्ति 19 पर 4 इस समय सुमित कुमार एंड कंपनी टिम्बवली। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, गावदेवी केवनी दिवे बनाम। एक बात है, ये जो तेजस हैं, तेजा, ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। गावदेवी केवनी दिवे बनाम शेलू माता वर्ल्ड बी अगला मुकाबला रहेगा। दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन है आपको टॉस के लिए आना है। यस, शेलू माता वर्ल्ड के कैप्टन और गावदेवी केवनी दिवे के कैप्टन। हाई वोल्टेज मुकाबला आप देख रहे हैं। स्कोर तो ठीक ठाक है, 19 रन बने हैं, लेकिन जब हम विकेट कॉलम में नजर डालते हैं तो वहां पर चिंता जरूर दिखती है टिम्बवली टीम के लिए। प्रतीक पाटिल 14 पर बैटिंग करते हुए 5 गेंदे के लिए 3 खूबसूरत चौके उन्होंने जड़े हैं। मंदार 2 पर। दर्शकों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई, खासतौर पर ऑनलाइन व्यूवर्स की संख्या काफ़ी बढ़ती हुई, क्योंकि दोनों भी बड़ी टीमें खेल रही है। इसी बीच कुछ मेहमानों का यहाँ पर शुभागमन होता हुआ। माननीय श्री मनीष मात्रे साहब, माजी सरपंच गुंदवली, इनका शुभागमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत है बालिया मामा ट्रॉफी 2023 में। उनके साथ सतीश मात्रे साहब भी तशरीफ लाते हुए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जीत की पहली गेंद इनसाइड आउट खेला है, गेंद हवा में, फील्डर पीछा कर रहे हैं लेकिन बहुत दूर रह गई गेंद। थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है फील्डर को, और इससे पहले कि उठाकर थ्रो करते डीप कवर में से 3 रन लेने का मौका बैट्समैन के पास। यस अजय, अच्छा स्ट्रोक मैं कहूँगा। अब देखना ये है कि जिस तरह केतन मात्रे ने गेंदबाजी की, दूसरा ओवर उनका कैसा रहता है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि एवन जोड़ी। हमारे बीच वरुण मात्रे साहब का भी शुभागमन होता हुआ, या आप उनको देख सकते हो, तीनों भी मेहमानों को और उनके सहयोगी, आपका हार्दिक स्वागत। इस बार स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, बल्ले पर ठीक तरह से ले तो नहीं पाए। यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगा है और ऑन फील्ड अंपायर, तीसरे अंपायर के पास जाते हुए सुमित देशमुख। देखना है कि तीसरे अंपायर क्या निर्णय देते। मेरा अपना मानना है कि बल्लेबाज ने बल्ला ग्राउंडेड किया था या नहीं, एक ही प्रश्न सिर्फ है। हालांकि दूर से लग तो रहा है कि बल्ले को स्लाइड करते हुए आ रहे हैं। ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन, लेकिन ओ माय गॉड, टच एंड गो। तीसरे अंपायर के लिए बहुत मुश्किल निर्णय। इसीलिए तो ऑन फील्ड अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद ली है। यस, टेक्नोलॉजी है। एक्सलेंट। हेमंत शेट्टी वैसे भी बहुत मैच्योर अंपायर है, किसी तरह का जोखम। और तीसरे अंपायर का निर्णय, बैट्समैन आउट। यस, शंकर पाटिल साहब हमारे बीच में, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। निवेदन है कि आपको मंच पे आना है। मंच पे आते हुए इस वक्त शंकर पाटिल साहब, आपका हार्दिक स्वागत। ये सिर्फ
टेक्नोलॉजी से ही आउट दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती तो मेरे ख्याल से बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बल्लेबाज के पक्ष में जाता और बैट्समैन नॉट आउट रहते। लेकिन ये आधुनिक क्रिकेट है, आधुनिक टेनिस क्रिकेट, टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल, बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट ग्लोबल टेनिस क्रिकेट द्वारा जीटीसी लाइव। मंदार गोराटकर रन आउट हुए हैं, सिंगल चुराने का प्रयास किया गया था, अच्छा निशाना किरण मात्रे का। किरण मात्रे भी बहुत अच्छा योगदान देते हुए अपनी टीम को, पहले मैच में बैटिंग उनकी लाजवाब रही थी, दूसरे मैच में बल्कि आलिमगढ़ के विरुद्ध 31 रनों की पारी खेली थी। नए बैट्समैन मोनिश पाटिल क्रीज पर पहुंचे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है यहाँ पर प्रतीक पाटिल के कंधों पर। बल्ले के टोपर लगी है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है ऋषि भोईर और कोई गलती नहीं, जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट भी मिल गया है एवं जोडी वाकलन को। प्रतीक पाटिल आउट तरफ, लेकिन देखिए संतुलन अपना गवा बैठे और बल्ले के बिल्कुल टोपर लगी थी, मिड विकेट की दिशा में चली गई, बाउंड्री लाइन के नजदीक। बहुत अच्छा कैच। अधिकांश बार हम देखते हैं अजय गरत के बल्ले के टो पे लगने वाली गेंदें बाहर भी जाती है, लेकिन इस शॉट में एलिवेशन ज़्यादा नहीं प्राप्त हुआ था, खेलना चाहते थे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, बल्ले का मुंह भी जल्दी बंद कर दिया और टो पे भी लग गई, लेकिन बड़ी विकेट। एवन जोड़ी वाकलन, नीलेश पाटिल, शुकेट डाकी जो कि महाराष्ट्र की एवन जोड़ी है, ये उन्होंने टीम को लाया या स्पॉन्सर किया है, और एवन गेंदबाजी करती हुई और फील्डिंग करती हुई। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, हालत खस्ता होती हुई टेम्बोली की। प्रतीक पाटिल अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर वही प्रश्न कहीं ना कहीं सामने आ रहा था कि कब तक क्रीज पर टिके रहेंगे प्रतीक पाटिल, क्योंकि ज़्यादा आक्रामक खेल रहे थे वे भी। 17 रन बनाकर आउट हुए, 22 पर 6। नाजुक स्थिति है इस समय सुमित कुमार एंड कंपनी टेम्बोली की। नए बैट्समैन आदित्य भोईर, बल्लेबाजी तो काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही है कागज़ पर। नॉन स्ट्राइकर से इन पर बैट्समैन को रन आउट करने का प्रयास जरूर था, लेकिन बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित। देखिए 8वें नंबर पर आदित्य आए हैं, इसी से पता चलता है कि कितनी लंबी बैटिंग लाइनअप है। हल्के हाथों से खेला है, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, सिंगल से खाता खुला आदित्य का। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल, थोड़ा देर से जागे टेम्बोली के बैट्समैन, आप जाकर पुश किया जा रहा है। प्रतीक पाटिल जिस गेंद पर आउट हुए सिद्दिक बाबे, वो गेंद हालांकि विकेट टेकिंग डिलीवरी तो नहीं थी, फुल टॉस थी, लेकिन बल्लेबाज थोड़ा जल्दी खेल बैठे, जहां खेलना चाह रहे थे वहां खेल ही नहीं पाए। गहरे संकट में फंस गई है टेम्बोली टीम इस मुकाबले में। हालांकि संकट में से अपनी टीम को बाहर निकालने का मादा जरूर रखते हैं आदित्य भोईर और मोनिश पाटिल। धीमी गति की गेंद थी, विकेट कीपर से ज़्यादा दूर खेल नहीं पाए, कोई रन नहीं इस गेंद पर। इस ओवर के बाद और 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। जीत भोईर का ओवर भी काफ़ी कामयाब साबित होता हुआ, सिर्फ 4 रन दिए हैं और विकेट्स भी उनको मिले हैं। 1 विकेट मिला है इस बार। शॉट आर्म पुल, नो लुक शॉट, देखा ही नहीं खेलने के बाद और दौड़ने का कष्ट उठाया नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंट थे कि गेंद मैदान के बाहर जाएगी। 6 रन। सिलसिला भी उन्होंने शुरू किया है। 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 29 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आज के दिन का कुल मिलाकर ये 9वां मैच है और तीसरे राउंड का मुकाबला है सुमित कुमार एंड कंपनी टेम्बोली और एवन जोडी वाकलन के बीच में। टॉस जीता वाकलन टीम के कैप्टन ने पहले फील्डिंग चुनी। विकेटें काफ़ी गिरी है, पहले ओवर में 3 खिलाड़ी आउट हुए केतन मात्रे की गेंदबाजी पर।
जबकि उन्होंने पहली 2 गेंदों पर 2 चौके भी खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद जो पलटवार किया वो काबिल तारीफ। उसके बाद उद्देश्य को गेंदबाजी के लिए लाया गया था। 9 रन देकर 1 विकेट उन्होंने चटकाया और 10 पर 1 विकेट जीत के खाते में। एक बैट्समैन रन आउट हुए हैं। ऑनलाइन व्यूवर्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और मैच यदि रोमांचक स्थिति में पहुंचा तो शायद 10K के आसपास भी ऑनलाइन व्यूवर्स हो सकते हैं। इस समय ऑलमोस्ट 4K के करीब है। और आज का जो खेल हुआ है 1,40,000 लोग अभी तक देख चुके हैं बढ़िया यॉर्कर, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ उसको चॉप किया और एक तेज सिंगल वहां पर। केतन मात्रे का यह दूसरा ओवर। पहला ओवर जो किया था उन्होंने पाइपलाइन एंड से किया था, लेकिन अब छोर बदला गया है। तेजस्वी सदन एंड से गेंदबाजी करते हुए इस समय केतन मात्रे कमाल के खिलाड़ी है। पूरे तन मन दिल और दिमाग के साथ मैदान में प्रकट रहते हैं केतन मात्रे। चाहे बल्लेबाजी करे, फील्डिंग करे या फिर गेंदबाजी करे केतन मात्रे। 6 पर मोनीश पाटिल, 2 पर आदित्य ने थोड़ा संयम दिखाया है। जो 2 गेंदें खेली है छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए ही उन्होंने सिंगल्स लिए हैं। हालांकि उनका स्वाभाविक खेल इससे विपरीत है। विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग है। सिचुएशन के अनुसार बैटिंग करने का प्रयास। इस बार स्विच हिट लगाना चाहते थे मोनीश, पूरी तरह से चूक गए। तेज तर्रार गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। केतन मात्रे, तेज निकल गई गेंद। थोड़े लेट हो गए अपने स्ट्रोक में बल्लेबाज। इरादे नेक थे लेकिन सफलता मिली नहीं। फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए यह स्ट्रोक बनता भी था। फिर से तेज तर्रार गेंद, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया है। लाजवाब गेंदबाजी केतन मात्रे की। जितनी तेज गेंदबाजी करते हैं उतने ही तेज स्ट्रोक्स भी खेलते हैं जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं। इस बार स्क्वायर कट करना चाहते थे, जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया था, लेकिन जो पेस है वो उसको परख नहीं पा रहे हैं। गेंद स्कीड होकर चली जा रही है विकेट कीपर के पास। केतन एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार लॉफ्ट कर दिया गेंद को ऑन साइड में। फील्डर दूर से गेंद के नीचे आते हुए उमेश, और बढ़िया कैच। जगल जरूर किया था फील्डर उमेश ने, लेकिन गेंद को नीचे गिरने नहीं दिया। स्लाइटली फुलर लेन गेंद थी जिसको फ्रंट फुट पर आकर स्लॉक किया था। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से हवाई फायर करते हुए छक्का जड़ने का प्रयास, लेकिन टाइमिंग गलत रहा और एक बहुत ही शानदार कैच। मोनीश आउट हुए 6 रन बनाने के बाद। 30 पर गिरा है यह 7वां विकेट और केतन के खाते में 4था विकेट। गजब की गेंदबाजी, गजब का प्रदर्शन करते हुए केतन मात्रे। नए बैट्समैन विघ्नेश, इस बार अंदर की तरफ लाया था, शायद शरीर से जाकर टकराई। कोई रन नहीं इस गेंद पर। सिर्फ 1 रन खर्च किया है, स्कोर 30 रन। ये जरूर थोड़ी सीधी रहती हुई गेंद थी और लेग स्टंप के बाहर। तीस रन हुए हैं, 30, और 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, जबकि केवल 7 गेंदें पारी में शेष। महज 1 रन खर्च किया है केतन ने इस ओवर में। इस बार साहस जुटाया जरूर था, ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर घुमाना चाहते थे, लेकिन फिर से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए। एक और डॉट बॉल और इसके साथ ही केतन मात्रे का लाजवाब स्पेल समाप्त होता हुआ। 2 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट्स, और 4 ओवर के पश्चात टेम्बोवली टीम का स्कोर 30 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। चलिए, टीम मीटिंग ज़्यादा देर के लिए नहीं लेनी है प्लीज़। वाकलन टीम के कैप्टन समय का ख्याल रखें। मात्र 6 गेंदें शेष है। हालांकि अंडर फ्लडलाइट्स यहाँ पर हमने देखा है कि
कल 32 के स्कोर पर भी मैच टाई हुआ था। आई देवी वडुनगर टीम ने सुपर ओवर में वो मैच जीता। गजब की गेंदबाजी रही थी दिनेश चौगुले की। हालांकि कल के अंतिम मैच में 50 रन भी चेज हुए। एक और मुकाबला हमने जो देखा था जिसमें 37 रन डिफेंड किए गए थे राहनाल टीम द्वारा भादवड़ के विरुद्ध। तो कहीं ना कहीं अंतिम ओवर में 10-12 रन से यदि बल्लेबाज बनाते हैं तो मैच बन सकता है। फाइट बैक करने का अच्छा मौका टेम्बोली टीम के पास भी रह सकता है। उनके पास भी बॉलिंग जो है उसमें काफ़ी धार है। प्रतीक पाटिल, सोहम जैसे अच्छे गेंदबाज है। मोनिश बायत के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, अच्छे ऑलराउंडर। तो बॉलिंग में तो धार है, लेकिन गाड़ी कहाँ तक पहुंचेगी ये देखने वाली बात है। अंतिम 6 गेंदों पर कितने रन्स अब बल्लेबाज जोड़ पाएंगे ये देखने वाली बात है। आदित्य भोईर और विघ्नेश की जोड़ी क्रीज पर, और अंतिम ओवर के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए अविनाश भोईर। मोतीराम को ओवर नहीं दिया गया इस मैच में। पिछले मैच में उन्होंने गेंदबाजी की थी। तो काफी सारे विकल्प वाकलन टीम के पास भी है गेंदबाजी में। हवा में गेंद पीछे की तरफ फील्डर मौजूद है। विकेट कीपर के लिए तो मौका नहीं था और रन नहीं लिया गया है। शॉर्ट थर्ड मैन के शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी प्रयासरत थे। पूरी तरह से गेंद कैरी नहीं हुई फील्डर तक। लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे वहां पर आदित्य भोईर। क्षमता तो जरूर है आदित्य भोईर में कि वो बड़े हिट्स लगा सकते हैं, लेकिन अविनाश भी एक चतुर बॉलर है। एवं जोड़ी वाकलन अच्छा खेल पेश करती हुई बाले मामा चषक 2023 में। अविनाश एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार तान दिया है आसमान में, झन्नाटेदार शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। आ रही है वाकलन की, लेकिन टेम्बोली और वाकलन के बीच में जो मैचेस हुए हैं हेड टू हेड हम देखें तो उसमें पलड़ा टेम्बोली का भारी है। बताया जा रहा है कि 8 बार मुकाबले हुए हैं इससे पहले और 8 बार टेम्बोली टीम जीती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। ये 9वां मुकाबला। गेंद मंगाई जा रही है। गेंद को बहुत दूर भेज दिया था मिड विकेट के ऊपर से आदित्य भोईर ने। रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है टेम्बोली का, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि क्रिकेट भूतकाल में नहीं वर्तमान में खेला जाता है। आज कहानी शायद बदल भी सकती है। आज मौका तो है एवन जोड़ी वाकलन के पास, लेकिन मैच अभी भी बहुत बाकी है और पलटवार यहाँ पर शुरू हुआ है। आदित्य भोईर ने छक्का जड़ा है। रन संख्या 36। अभी भी 4 गेंदे पारी में शेष। कमेंट्री बॉक्स में वॉल ऑफ गुंदवली कृत पाटिल का आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है। लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, उसको ऑन साइड में उठाकर खेला। ज्यादा खराब गेंद तो नहीं थी, लेकिन शॉट बहुत ही उम्दा जमाया वहां पर आदित्य भोईर ने। फील्डिंग की जमावट, एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग। इस बार जाने दिया है वाइट का इशारा। अतिरिक्त रन, थोड़ा सा दबाव कहीं ना कहीं गेंदबाज पर। टप्पा पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद अविनाश की। बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास। फिर से उठा के खेल दिया है, तारामंडल में भेज दिया है गेंद को। एक और छक्का। मुझे भी पिला दे। फाइटिंग टोटल तक तो पहुंच गई है टेम्बोली टीम, और यदि इसी तरह से बल्लेबाजी जारी रही इस आखिरी ओवर में तो स्कोर डेंजर जोन में पहुंच सकता है। इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, थोड़ी खिंची हुई लेंथ पर थी। आड़े बैट से खेल दिया है वाइड ऑफ डीप मिड विकेट। वहां पर फील्डर, एक फील्डर से फंबल हुआ, दूसरे ने कवर किया। तब तक 2 रन लेने का मौका। स्ट्राइक अभी भी
आदित्य भोईर के पास अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए 16 रन बना चुके हैं, 6 गेंदों का सामना किया है। स्कोर 45 रन 45, 7 विकेटों के नुकसान पर। दोनों टीमों के बीच में यही उम्मीद है कि एक बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिले। इस बार छोटी गेंद, पुल, पावरफुल, डिलाइटफुल और सक्सेसफुल, 6 रन। तुमसे मिलने को दिल करता में और इसके साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए सुमित कुमार एंड कंपनी टेम्बोली के रन संख्या 51, 7 विकेटों के नुकसान पर। एक क्षण के लिए तो ऐसे लग रहा था कि 35-40 तक भी ना पहुंच पाए टीम, जब विकेटें गिर रही थी लगातार, लेकिन यकायक ये पलटवार अंतिम ओवर में। जबरदस्त बल्लेबाजी। एक गेंद अभी भी बची हुई है। इस गेंद पर यदि छक्का जड़ते हैं तो 1000 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा एडवोकेट राजेश पाटिल साहब की ओर से। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आदित्य भोईर। जुझारू टीम है। हमने देखा था वडगर के टूर्नामेंट में फाइनल मैच में 18 गेंदों पर 18 रन डिफेंड किए थे उन्होंने गुरसई बी के विरुद्ध। यस, अगर इस गेंद पर भी सिक्सर आता है तो एडवोकेट राजेश पाटिल की तरफ से 1000 रुपये का इनाम है। कहां पर करेंगे गेंदबाजी अविनाश, वापसी करनी होगी उनको। आगे रखा, फिर से उठा दिया है, फिर से बेहतरीन स्ट्रोक, एक और सिक्सर और 1000 उनके खाते में जमा होते हुए 51 हुआ और 58 का टारगेट। यॉर्कर लेंथ गेंद देखने को नहीं मिली, लेंथ गेंदबाजी या फिर स्लॉट में गेंदबाजी, शॉर्ट पिच गेंदबाजी, जिसका पूरा फायदा उठाया आदित्य ने। 28 रनों की नाबाद पारी और 58 रनों का बड़ा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए 5 ओवर्स में A1 जोड़ी वाकलन के सामने। अगले मैच का टॉस। दर्शक ने कैच पकड़ा है उसको वीआईपी पे आना है। कैश प्राइज है आपके लिए, कैच लो और कैश लो। क्या गजब की बल्लेबाजी रही, क्या गजब का फिनिशिंग टच दिया आदित्य भोईर ने। आइए अगले टॉस के लिए हम तैयार हो रहे हैं। शेलुमाता वल बनाम गावदेवी केवनी दीवे के बीच मैच हो रहा है और टॉस के लिए अजय गरत इस वक्त आरके बिल्डर 3 स्टार टॉस बॉक्स में। शेळूमाता वर्ल्ड संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपण त्वरित टॉससाठी या। बघा प्रतिस्पर्धी संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहे। शेळूमाता वर्ल्ड बी संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपण त्वरित टॉससाठी या। अजय, जिस दर्शक ने कैच पकड़ा है उसको हम कैश प्राइज दे रहे हैं। संदीप पाटिल के हाथों से कैश प्राइज, बाप रे बाप, हरी नोट 500 संदीप के सपूत दे रहे हैं। नाम तो बता के जाओ। कल्पेश जोशी क्रिकेट खेलते हो? यस, फिर बराबर पकड़ा आपने। केतन मात्रे की अग्नि परीक्षा, क्योंकि लक्ष्य है A1 जोड़ी वाकलन के सामने 58 रनों का 5 ओवर में। दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ केतन मात्रे एज पर एज हिज क्लास कंसर्न। और ओपन करने के लिए भी केतन मात्रे आ रहे हैं।
मजा आएगा इस मैच में। सिद्दीक बाबे 58 रनों की चुनौती, केतन मात्रे गजब के फॉर्म में है और केतन का बल्ला यदि चला तो फिर ये 58 रनों का टारगेट छोटा लगने लगेगा। देखिए, रेलिंग के पीछे अगर कैच आप पकड़ते हैं तो आपको 500 रुपये का इनाम है हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सितारे संदीप पाटिल की तरफ से। स्वागत है आप सभी का। एक ही सम्राट, ग्रामीण सम्राट बाल्या मामा चषक 2023 में सुमित कुमार एंड कंपनी गुंदोली इस स्पर्धा के फोकस मैन एडवोकेट राजेश पाटिल और तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से 58 का लक्ष्य केतन मात्रे के साथ ऋषि भुईर ओपन करने आए। अजय, आई थिंक केतन मात्रे के लिए भी ये उनके क्लास की परीक्षा है। यस, गुंदोली टेमोली टीम के ओनर अक्षय पाटिल ने इस वक्त हैट्रिक के लिए टेमोली टीम को 2000 रुपये का इनाम दिया है। पहली गेंद काफी नीची रही थी कल। इस मरतबा हो क्या शॉट खेला है, फॉलिंग स्वीप। और ये देखिए 3-3 खिलाड़ी झपटते हुए, क्या क्रिकेट चल रहा है। ये सिर्फ आपको गुंदोली के गंगा माता क्रिकेट ग्राउंड पे और बाल्या मामा चषक में ही नजर आएगा। ये देखिए फॉलिंग स्वीप किया था केतन मात्रे ने, 3-3 खिलाड़ी ने उसका पीछा किया और गेंद को रोक दिया। 2 रन से खाता खुला यहाँ पर केतन मात्रे का, खाता खुला ऋषि भोईर का। बघा, क्रिकेट रसिकांसाठी सुवर्ण संधी आहे। सीमारेषेच्या पलीकडे, रॅलिंगच्या पलीकडे जर तुम्ही जेल स्वीकारलात तर 500 रुपयांचं रोख पारितोषिक संदीप पाटील यांच्या माध्यमातून असेल। आणि याच दरम्यान एक चांगला फटका इनसाइड आउट, सुपर शॉट, किमान 2 धावा तर मिळतील, कदाचित चौकार होऊ शकतो, परंतु चांगले प्रयत्नांची पराकाष्ठा, चांगलं क्षेत्ररक्षण। ओ, डायरेक्ट हिट लागली आहे त्या ठिकाणी, अपील होत आहे, जोरदार अपील धावचीतसाठी। आणि पंचांचा आता इशारा तिसऱ्या पंचांकडे गेलाय, तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आली आहे। सर्व खेळणाऱ्या संघांना एक विनंती आहे की आपण टॉस साठी प्लीज वेळेवर उपस्थित राहत जा। एवढं मोठं आयोजन तुमच्यासाठीच करण्यात आलेलं आहे। यस, कल हम देखने वाले हैं कि भूषण मात्रे, यतीश भुईर और रोश भुईर 3 स्टार कल आपको गुंदोली की टीम में नजर आएंगे। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में रिप्ले आता हुआ। आज वाकई में देखिए कल बाउंड्री देखील चेक करायची आहे।
देखना है, पहले बाउंड्री चेक की जा रही है, क्या बाउंड्री थी या नहीं। ये देखिए जूमिंग करके दिखाया जा रहा है जीटीसी की तरफ से। मेरे ख्याल से प्रतीक थे वहां पर। यस, बाउंड्री तो सेफ थी। अब रनआउट की तरफ हम जाते हैं। नट आउट। कितने रन पूरे हुए अंपायर? 3 रन। कुल मिलाकर 5 पे पहुंचा स्कोर। ऋषि भुईर 5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली मर्तबा अब केतन मात्रे सामना करने जा रहे हैं प्रतीक पाटिल का। केतन मात्रे के क्लास की परीक्षा है। द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट। इस मर्तबा उछाल दिया गेंद को दूर गगन की छाव में। 6 रन। कुछ खास है। इस मर्तबा मोड़ दिया है गेंद को डीप मिड विकेट पर। थ्रो पहुंचा है, हाँ ना चलती भी। बढ़िया कॉल। ऋषि भुईर का रन के लिए हिरन बन गए। 2 रन पूरे किए। केतन मात्रे अब अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। ये खिलाड़ी ऐसा है ना अजय, इसके कंधों पे जितना बोझ डालो उतने इसके कंधे मजबूत होते हैं। असं बऱ्याचदा आपण बघितलंय, अंडर प्रेशर त्याने चांगला खेळ केलेला आहे वाकलन टीमसाठी। इस मरतबा बैकफुट पे गए, हल्के से टैप किया गेंद को पॉइंट पे। 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ। एवन जोड़ी वाकलन का। 1 ओवर की समाप्ति, 14 रन। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। सन्माननीय सतीश म्हात्रे साहेब, वरुण म्हात्रे साहेब आणि मनीष म्हात्रे साहेबांना विनंती असेल आपण टॉस बॉक्समध्ये यावं। तसेच नितीनजी म्हात्रे आपल्याला देखील आम्ही विनंती करतोय, आपण देखील या। पाहुण्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण टॉस करणार आहोत। आम्ही उभे आहोत सध्या आर.के. बिल्डर्स 3 स्टार्स टॉस बॉक्समध्ये, जिथे पुढील सामन्याचा टॉस केला जाणार आहे। केवणी दिवे विपक्ष शेलुमाता वर्ल्ड बी असा सामना असेल। दोन्ही कॅप्टन्स टॉस कॉइन बघून घ्या। एका बाजूला बाळ्यामामा चषक 2023 आणि दुसऱ्या बाजूला सुमित कुमार अँड कंपनी गुंदवली। सर्व पाहुण्यांचे मी हार्दिक स्वागत करतोय टॉस बॉक्समध्ये। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। केवणी दिवे टीमचे कॅप्टन कॉल देणार आहेत। बाळ्यामामा चषक असा कॉल, परंतु सुमित कुमार अँड कंपनी आलेला आहे। टॉस या ठिकाणी शेळूमाता वर्ल्ड बी संघाने जिंकलाय। डिसिजन कळवायचं आहे। बॅट फर्स्ट। बॅटिंग करण्याचा निर्णय। थँक्यू सो मच। आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा। तुम्हाला देखील आम्ही हार्दिक शुभेच्छा देतो केवणी दिवे संघ आणि सर्व पाहुण्यांचे मी आभार व्यक्त करतोय। पाहुण्यांना विनंती असेल आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हावं। थँक्यू सो मच। तर टॉस येथे संपन्न झालेला आहे। टॉस जिंकून प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय शेळूमाता वर्ल्ड बी संघाचा, सॉरी गोलंदाजी करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतलाय। जाऊयात आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये। धन्यवाद अजय। गेंदबाजी के लिए सोहम पाटिल, सामना करेंगे केतन मात्रे। क्रीज में पीछे जाके खेलने की कोशिश, फॉलो किया वहां पर केतन को, डॉट गेंद। ये मुकाबला काफी गुल खिलाएगा। क्या तेज तर्रार गेंद थी। ऋषि भुईर गए हैं केतन मात्रे के पास कुछ कहने के लिए। देखिए यहां से वाकलन को सीधा दिनकर से ट्रॉफी में सेमीफाइनल खेलना है। आरसीसी पेट और खाड़ी के बीच वहां मुकाबला जो हो रहा है उसकी विजेता टीम से। लेकिन 5000 लोग यूट्यूब पे हमसे जुड़ चुके हैं इस मैच के लिए।
सभी का स्वागत है। सोम पाटिल तेजस्वी सदन एंड की तरफ से सामना करेंगे बैट्समैन केतन मात्रे। इस मर्तबा गेंद आसमान में चली गई है, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। क्या गजब का है केतन मात्रे के बल्ले से। जोखिम लिया था, जोखिम वही लेता है जो बहादुर रहता है, और किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। सीधे प्लेट से लॉफ्ट किया था। फॉर्चून इज ऑलवेज फेवर ब्रेव पर्सन। अजय गरज जुड़ते हुए गर्मा गर्म मैच में मुझसे। वेलकम अजय। थँक्यू सो मच सिद्दीक बाबे. थोडं करेक्शन आपण करतोय. पुढील सामन्याचा टॉस जिंकून प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे शेळूमाता वर्ल्ड बी संघानं. आणि ते केतन मात्रे ऑन फायर. दुसरा षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. धावसंख्या बिनबाद 20 रन लक्ष्य है 58 रनों का। नीलेश पाटिल शुकेश डाकी फैम टीम एवन जोड़ी वाकलान महाराष्ट्र की एवन जोड़ी और बल्लेबाजी की एवन जोड़ी इस वक्त मैदान पर। 20 रन बिना किसी विकेट के, पलटवार। देखिए क्या क्लास है इस खिलाड़ी का। अजय ठाना डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग में इंजर्ड होने के बावजूद गोल्डन बाउंड्री भी लगाई और टीम को फाइनल भी जिताया। अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये केतन मात्रेने चांगली कामगिरी केली आहे. सोम पाटिल बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी। चॉप किया, मिसफील्ड हुआ है, हाना चल रही है, 1 ही रन। स्कोर 21 पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के। एवन जोड़ी वाकलान। आणि येथून समीकरण आता 21 बॉल्समध्ये 37 धावांची आवश्यकता आहे. ऋषी भोईर देखील चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतोय. 3 बॉल्सचा सामना केलाय, 5 धावा आतापर्यंत त्याने जोडल्यात. चांगली पार्टनरशिप पहिल्या गड्यासाठी. सोम पाटिल लंबे रनअप से मुड़ते हुए सामना करेंगे ऋषि भोईर। बैकफुट पे गए, कट किया, कंट्रोल कट शॉट। स्ट्राइक को रोटेट किया है केतन मात्रे को। बिल्कुल गेम प्लान से बल्लेबाजी हो रही है अजय घरत. आणि तेच महत्त्वाचं असतं जेव्हा तुम्ही मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असता. प्रत्येक बॉलवर चौकार षटकार ठोकण्याची गरज देखील नसते. ऋषी भोईर जास्तीत जास्त स्ट्राइक रोटेट करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि केतन मात्रे जास्त आक्रमक आतापर्यंत खेळलाय. जैसे जैसे मैच गर्म हो रहा है वैसे वैसे ऑनलाइन व्यूवर्स बढ़ रहे हैं. 5500 व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं. केतन को ड्राइव किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ. कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन. स्टैंड एंड टायमिंग अगदी बॅटच्या मधोमध घेऊन चेंडू काढलाय त्याने एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून 4 धावांसाठी. अप्रतिम बॅटिंग. बॅटिंग करताना बघितल्यानंतर असं वाटतं की बॅटिंग करणं जगातील सर्वात सोपं काम आहे. सोम केतन को कदमों का इस्तेमाल, फिर कवर ड्राइव, फिर 4 रन. व्हाट अ बैटिंग. केतन मात्रे ऑन फायर. एक्स्ट्राऑर्डिनरी फलंदाजी. पावलांचा सुरेख वापर. अगदी चेंडूच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलाय. फुलवर घेऊन किंबहुना हा ड्राईव्ह त्याने लगावलाय. पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा उचलत असताना केतन मात्रे लाजवाब बॅटिंग पाहायला मिळते. काय पदलालित्य आहे. मग अगदी फुलवर घेत असताना कव्हरला जो फिल्डर आहे त्याला बीट केलंय आणि आउटफील्ड फार फास्ट आहे गुंदवलीमध्ये. बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 30 या आकड्यावर. बिनबाद 30. सबसे बड़ी बात है कि गेंद के मेरिट पे खेल रहे हैं. ये देखिए कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारा था गेंद को और गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन. 2 ओवर में 30, अब 3 में चाहिए 28. पॉवर प्ले मॅक्झिमाइज केला गेलाय केतन मात्रेकडून. 8 बॉल्समध्ये 24 धावा त्याने बनवल्यात आतापर्यंत. 300च्या स्ट्राईक रेटनं तो खेळतोय. ऋषी भोईर त्याला चांगली साथ देतोय. 4 बॉल्समध्ये 6 धावा त्याने देखील जोडल्यात. दोघांच्या फलंदाजीमध्ये फार फरक देखील पाहायला मिळतो. केतन
पॉवर गेम देखील दाखवतो, मात्र टेक्निक देखील त्याच्याकडे तेवढंच चांगलं आहे आणि चेंडूच्या मेरिटवरच जास्तीत जास्त फटके खेळण्याचा प्रयत्न केतनचा असतो. इम्प्रोवाइज क्रिकेट क्वचितच खेळण्याचा प्रयत्न त्याने केला आहे. दुसरीकडे ऋषी भोईर आहे, ज्याच्याकडे नाजूक फटके जास्त आहेत. तो स्क्वेअर ऑफ द विकेट किंवा बिहाइंड स्क्वेअर अतिशय चतुराईनं फटके खेळून धावा जोडण्याचा प्रयत्न करत असतो, परंतु दोघेही फार इफेक्टिव्ह आहेत. आणि आता गोलंदाजीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आदित्य भोईर गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय, ज्यानं फटकेबाजी अप्रतिम केली आणि क्रिकेट रसिकांना अक्षरशः मंत्रमुग्ध करून टाकलं. आपल्या फटकेबाजीच्या जोरावर शेवटच्या ओव्हरमध्ये तब्बल 4 षटकार ठोकले होते. 28 धावांचं योगदान त्यांनी दिलं. 18 बॉल्स आणि 28 धावा असं समीकरण A1 जोडी वाकलन टीम समोर. वाकलन विरुद्ध टेंभवली, बिग मॅच. क्रिकेट रसिकांची प्रचंड गर्दी स्टँड्समध्ये देखील पाहायला मिळते. चांगला बॉल टेंटेटिव्ह वाटला यावेळेस. फलंदाज पुश करायचा होता ऑफ साइडला. Yes, I think Ajay, batsman in two-minded. You can see there, Ketan Rushi Bhuir tried to steer as ball, miss him outside the off stump. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या बाजूने मूव्ह होणारा चेंडू होता. फलंदाजापासून चेंडू दूर ठेवला गेला होता. पुढचा बॉल यावेळेस अगदी ओव्हरपिच बॉल आहे. ऑन ड्राईव्ह करत असताना डीपमध्ये फिल्डर उपस्थित, एक धाव मिळेल आणि खुश असेल फलंदाज ऋषी भोईर. त्याला माहिती आहे की केतन मॅजिकल टचमध्ये आहे या संपूर्ण टुर्नामेंटमध्ये. या आधीच्या सामन्यामध्ये देखील त्याने खूप चांगले फटके खेळले होते आणि या मॅचमध्ये तर जास्तच चांगले फटके तो खेळतोय. पूर्ण कंट्रोलमध्ये दिसतोय केतन म्हात्रे. धावसंख्या 31. Yes, nicely played, tucked away on the onside. He's still match in balanced position. 16 balls and 27 needing to victory. बॅलन्स सामना तसं तुम्ही बघायला गेला तर म्हणू शकता, पण मला थोडं असं वाटतंय की वाकळण संघाचं पारडं थोडंसं जड आहे, कारण 31 धावा धावफलकावर आहेत. केतन म्हात्रे खेळपट्टीवर ठाण मांडून आहे, चांगली बॅटिंग तो करतोय आणि 16 बॉल्समध्ये 27 धावा त्याच्यासाठी जास्त कठीण नसतीलच. 60-40 तुम्ही म्हणू शकता हा सामना वाकलन संघाकडे. रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न येते, जोरदार अपील होतं लेग बिफोरसाठी, परंतु पंचांची स्वीकृती मिळत नाही आहे. मी नुकताच उल्लेख केला की केतन इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेळण्याचा जास्त प्रयत्न करत नसतो, परंतु यावेळेस त्याने तो प्रयत्न केला. लेग बायचा इशारा केलाय पंचांनी. आइए देखते हैं किस तरह से उस अपील को नकारा था अंपायर ने. यस, ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी गेंद. पण चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये आतापर्यंत राहिली आहे आदित्य भोईरकडून. पहिल्या 2 षटकांमध्ये खूप जास्त धावा खर्च करण्यात आल्या. प्रतीकनं 14 धावा खर्च केल्या, सोहमनं 16 धावा खर्च केल्या होत्या. स्वीप करण्याचा प्रयत्न, हा बॉल देखील बॅटवर येत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. मॅचमध्ये मजा येते. 26 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. 14 चेंडूंचा खेळ बाकी. ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर जाऊन स्वीप करायचा होता. इनसाइड एज लागली होती, पण जास्त दूरवर चेंडू गेलाच नाही. विकेट कीपरकडे बॉल निघून गेला. प्रतीक पाटील विकेट कीपरच्या भूमिकेत. ज्या प्रकारचं षटक पाहिजे होतं टेंभवली टीमला मॅचमध्ये पूर्णपणे कमबॅक करण्यासाठी, त्याच प्रकारचं षटक आदित्य भोईर टाकतोय. काय जबरदस्त कामगिरी त्याची राहिली आहे या संपूर्ण मॅचमध्ये. नेक्स्ट बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस मिस टाइम स्ट्रोक, विकेट कीपर डाऊन द बॉल अँड ही टेक्स इट. पहिल्या विकेटचं पतन. खिलाड़ी हैं ये, तो A1 जोड़ी वाकलन के पीछे ही पड़ गए हैं. पहले बल्लेबाजी की, अब गेंदबाजी में परेशानी डाली है और मैच को बना दिया है. 13 गेंदे 26 रन. बने रहिए हमारे साथ, कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन व्यूवर्स की तादाद अब लगभग 5700 लोग इस मैच को देख रहे हैं. ती संख्या तर वाढतच जाणार आहे आणि इकडे देखील आपण बघतोय की ऑफलाईन क्रिकेट रसिकांची संख्या देखील वाढत चालली आहे. स्टँड्समध्ये गर्दी फार जास्त आता प्रमाणावर पाहायला मिळते. अगदी स्टँडच्या बाहेर उभे राहून देखील क्रिकेट रसिक या सामन्याची मजा लुटतायत. आपल्या सर्वांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय सुमित कुमार अँड कंपनी गुंदवली मार्फत. बाळ्यामामा चषक 2023चा हा थरार. ही तर फक्त 3री रजनी आहे या स्पर्धेची
आणखी 4 दिवस रात्रींचा खेळ आपण एन्जॉय करणार आहोत. उद्या तर फार लवकर सामन्यांना सुरुवात केली जाईल. ठीक सकाळी 11 वाजता सामन्यांना सुरुवात केली जाणार आहे. पहिला धक्का लागलाय. नवीन बॅट्समन किरण म्हात्रे. आता दोघे म्हात्रे बंधू खेळपट्टीवर आणि दोघे चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत. किरणनं मागच्या मॅचमध्ये धुवाधार बॅटिंग केली होती. तब्बल 31 धावा कुठून काढल्या होत्या. डेथ ओव्हर्समध्ये खूप छान फटकेबाजी त्याची राहिली होती आलिमगड संघाविरुद्ध. 32 धावा धावफलकावर पहिला धक्का लागलाय. 13 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 26 धावांची अजूनही आवश्यकता. आवश्यक धावगती आता पुन्हा एकदा 12ला स्पर्श झाली आहे. एक्झॅक्ट 12 रन्स पर ओव्हर. या षटकातील शेवटचा बॉल घेऊन आदित्य. थ्रू द लाईन लॉफ्टेड फटका. बॉल चाललाय वाईड ऑफ डीप मिड विकेट. तिकडे फिल्डर उपस्थित. एक धाव कंप्लीट केली गेली आणि एकच धावेवर समाधान व्यक्त करावं लागेल. फटका चांगला होता. आत्मविश्वास दिसून आला पहिल्याच फटक्यावर किरण म्हात्रेचा. सिंगलनं त्यानं स्वतःचा अकाउंट ओपन केलंय आणि याचबरोबर हे सक्सेसफुल षटक समाप्त झाले आदित्य भोईरचं. धावसंख्या 1/33 आणि आता उर्वरित 2 षटकांमध्ये 25 धावांची आवश्यकता आहे. अतिशय रोमहर्षक स्थितीत असलेला हा सामना टेंबवली विरुद्ध वाकलन. ज्या प्रकारच्या मॅचची अपेक्षा होती क्रिकेट रसिकांना आयोजकांना तसाच हा सामना रंगतोय. एकमेकांचे डावपेच ते उधळून लावण्याचा प्रयत्न दोन्ही संघ करतायत. एकमेकांवर कुरघोडी खऱ्या अर्थानं करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे मैदानामध्ये. यस अजय गरत केवल मैदान में दोनों टीमें नहीं खेल रही है बल्कि हैट्रिक अगर गेंदबाज लेता है तो उनके ओनर अक्षय पाटिल की तरफ से 2000 हैं और अगर हैट्रिक सिक्सर लगते हैं बल्लेबाजी की तरफ से तो एवन जोड़ी नीलेश पाटिल शुकेश डाकी की तरफ से 3000 है. ये रहती क्रिकेट की गर्मा गर्मी. मागचं षटक सुरू होण्यापूर्वी मी म्हटलं होतं की 60-40 आहे सामना, पण आता तर 50-50 झालाय पुन्हा एकदा. केतन मात्र जरूर अजूनही खेळपट्टीवर आहे, परंतु शेवटच्या ओव्हर्समध्ये जे प्रेशर असतं ते वेगळ्या प्रकारचं असतं आणि इथून काही घडू शकते. 12 बॉल्समध्ये 25 धावांची आवश्यकता. यस मोनिस पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है. सामना करेंगे उनका बैट्समैन किरण म्हात्रे. चला स्पीडअप करायचं आहे. खेळाडूंना विनंती असेल जास्त वेळ तुम्ही खर्च करू नका. 12 गेंदे 26 रन 25 रन. व्हाट अ मैच. मोनिस बाएं हाथ के गेंदबाज हैं. तेजस्वी सदन एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए. ये ओवर दोनों टीमों के गले की हड्डी बन गया है. न उगले जाए न निगले जाए. मोनिस पाटिल हालांकि पेपर पे बताया जा रहा है कि पिछले 8 के 8 मैच टेंबोली ने जीते हैं. मोनिस पाटिल समय में कॉपरेट करें. प्रतीक प्लीज. लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स. पहली गेंद क्रीज में पीछे जाके खेला है. बढ़िया फील्डिंग बाउंड्री पर. 1 रन. अब ये घोड़ों की नहीं शेरों की लड़ाई हो गई है और घोड़ों को लगाम डाली जाती है, शेरों को नहीं. व्हाट अ मैच. एकापेक्षा एक सरस खेळाडू दोन्ही टीम्सकडे आणि तसंच क्रिकेट देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जबरदस्त क्रिकेट. क्रिकेटचा हा घमासान द्वंद्व आहे दोन्ही संघांदरम्यान. एका बाजूला वाकळण आणि दुसऱ्या बाजूला टेंबवली. फटका चांगला होता. टायमिंग चांगलं साधलं होतं, पण गॅप शोधता आला नाही किरण म्हात्रेला. पहिल्या बॉलवर आली आहे सिंगल. आता 11 बॉल्समध्ये 24 धावांची आवश्यकता. एवन जोडी वाकळण टीमला. मोनिस पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए स्लाइस किया. गेंद बाउंड्री के बाहर. नो बॉल. 4 रन और कड़ेला ऊपर से नीम चढ़ा. गजरे ने जान नहीं ले ली है, लेकिन इस बीमर ने जरूर ले ली है. याला म्हणतात स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेणं. गोलंदाजानं तेच केलंय आणि काय प्रसंगावधान राखलंय फलंदाजानं. बीमर बॉल होता, परंतु जास्त ताकदीनिशी खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही. योग्य त्या ठिकाणी त्याने फटका मारलाय. स्लॅश करत असताना अप्रतिम फटका. थोडा हवेत उसळला होता फटका खेळत असताना. बॅकवर्ड ऑफ द पॉइंट इनफिल्डच्या वरून हा फटका सजवलाय 4 धावांसाठी. अतिशय कलात्मक फटका केतन मात्रेच्या बॅटमधून. बिल्कुल बल्ला फेंक दिया था. स्लाइस किया था गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पे. 4 रन. अब इक्वेशन है कि 11 गेंदे 19 रन. ये मैच का कहीं टर्निंग पॉइंट ना बन जाए, क्योंकि फ्री हिट है और ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा.
उछाल दिया है, गेंद मैदान के अंदर ही है, 1 रन बना, कैच तो जरूर हुआ है और 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से एवन जोड़ी वाकलन का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन। फ्रीड बॉल होता, त्यामुळे कुठलंही नुकसान तर होणार नव्हतं. झेल जरी स्वीकारला गेला असता तरी देखील 10 चेंडू शिल्लक आहेत, 17 धावांची आवश्यकता. व्हॉट अ मॅच. केतन मात्रेनं भरोडीच्या स्पर्धेमध्ये 5 बॉल्समध्ये 22 धावांची आवश्यकता असताना ते टार्गेट चेज केलं होतं. शेवटच्या बॉलवर गोल्डन षटकार देखील ठोकला होता. मोनिश पाटिल, केतन को बल्ले से गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन नो मैच लैंड में 2 रन पूरे. नॉट अ वेरी गुड स्ट्रोक, अनकन्व्हेन्शनल शॉट. खरं तर फटक्यामध्ये देखील धोका होता आणि त्यानंतर आपण बघितलं की धाव घेताना देखील धोका उद्भवला होता, परंतु फेक फार खराब पाहायला मिळाली. दिशाहीन थ्रो होता डीप कव्हरमधून. 2 धावा मिळत आहेत. स्वतःकडे जास्तीत जास्त स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न केतन म्हात्रेचा. धावसंख्या झाली 43 एका गड्याच्या मोबदल्यात आणि आता समीकरण आहे या मॅचमध्ये 9 चेंडू शिल्लक. वाकलन टीमला पाहिजेत 15 धावा. 32 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं केतन मात्रे. अगर केतन मात्रे के आज टोटल रन को हम देखें भिवंडी तालुका में तो 150 के ऊपर बना चुके, क्योंकि दिनकर से ट्रॉफी में भी रन बनाए और यहाँ भी बनाए. कमालीचा खेळाडू आहे केतन मात्रे. गोलंदाज आपण बघतो या ओव्हरमध्ये मोनिश पाटीलला. लेफ्ट आर्म गोलंदाज केतनच्या विरोधात एक चांगला पर्याय जरूर पाहायला मिळतोय, परंतु गोलंदाजानं एक मोठी चूक केली. बीमर बॉल टाकलाय, त्यामुळेच जे प्रेशर होतं कुठंतरी फलंदाजांवर, अजूनही प्रेशर आहे, परंतु काही प्रमाणात प्रेशर कमी झालंय, कारण त्या बीमर बॉलवर चौकार ठोकला होता केतन मात्रेनं आणि आतापर्यंत ह्या ओव्हरमध्ये 10 धावा गोलंदाजानं खर्च केल्यात. अजय देखिए, कुछ खिलाड़ी तो पैदाइशी क्रिकेटर हैं, उसमें एक नाम केतन मात्रे का है और हमारे एक नाम भावेश पवार का है. ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मजबूत काटी के, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज करते हैं. मोनिश पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, केतन को बल्ले के अंदर लगी, 1 रन. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 पे पहुंचा है. अब 8 गेंदे 14 रन. ये 2 गेंदे बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छी गेंद थी. खूप चांगला बॉल होता हा. हो, बॅटच्या टो एंडला लागला होता, बॉटम एज होती आणि अगदी एष्ट्यांच्या जवळून बॉल निघून गेला होता. नशीबवान ठरलाय केतन मात्रे. दिवस केतनचा राहिलाय, रात्र देखील केतनची असेल का? एक सवाल उभरता हुआ, यही तो कारण है कि 6800 लोग यूट्यूब पे हमसे जुड़े, हजारों लोग टेलीविजन सेट पे देख रहे हैं. 8-14 खींच के मारा है, चाबुक है, 6 रन. चर्चा फक्त केतनच्या नावाची होती, परंतु मैदानामध्ये किरण म्हात्रे देखील आहे. त्यानं आता त्याने दाखवून दिलंय. शॉर्ट बॉल होता, स्पिन होणारा बॉल, चेंडूला वळण घेऊ दिला आणि त्यानंतर चेंडू डिपॉझिट केलाय स्क्वेअर ऑफ द विकेट. अप्रतिम फटका, पुल केलाय हा बॉल, पुल आणि पॉवरफुल षटकार. देखिए, थोड़ा इंतजार किया और फिर वार किया. हरकत में बरकत है. आणि या षटकाराबरोबरच 50 धावा देखील कंप्लीट होत आहेत A1 जोडी वाकळण संघाच्या. आता समीकरण सोपं झालंय. 7 चेंडू शिल्लक, 8 धावांची आवश्यकता आहे. जबरदस्त फटकेबाजी. दोघे फलंदाज, दोघे बंधू आहेत खेळपट्टीवर आणि दोघे भन्नाट फॉर्म मध्ये दिसत आहेत. बाळ्या मामा चषक 2023 मध्ये. केतन ऑन 33, किरण म्हात्रे ऑन 8. देखिए, तमाम ऑडियंस की तरफ से ऑल द बेस्ट है दोनों टीमों को. आपकी शुभकामनाएं हम नहीं दे सकते. संघ कुठलाही जिंकू दे, खेळ चांगला झाला पाहिजे. एक और स्क्वायर ड्राइव, बल्ले का मुंह ज्यादा खुला, 1 रन. लग रहा है कि नीलेश पाटिल, शुकेट डाकी फैम टीम, अब यहां से कितने रन चाहिए? 6 गेंदे 7 रन. अजय करत, इस तरह की इक्वेशन आपको लगता नहीं कि और जोखिम बड़ी रहती है? फलंदाजांच्या मनात द्विधा निर्माण होत असते. ग्राउंडेड फटका खेळू की मोठे फटके खेळून सामना लवकरात लवकर मी फिनिश करू, अशी मनस्थिती देखील होत असते. द्विधा मनस्थिती आणि त्यामध्ये चुका होण्याची दाट शक्यता असते. 6 चेंडू 7 धावा. बघायचं गोलंदाजीला कोण येतोय. आतापर्यंत प्रतीक, सोहम, आदित्य, मोनिश 4 गोलंदाजांनी एक षटकांची गोलंदाजी केली आणि त्यामध्ये आदित्य भोईर सर्वात यशस्वी गोलंदाज, ज्याने 3 धावा देत 1 गडी बाद केलाय. अफलातून त्याचं षटक होतं.
संघाला तो सामन्यामध्ये परत घेऊन आला, परंतु मोनिशच्या षटकामध्ये फार जास्त धावा खर्च झाल्या. तब्बल 18 धावा मोनिशनं खर्च केल्या. जबरदस्त फटकेबाजी केतन म्हात्रे आणि किरण म्हात्रेची पाहायला मिळते. 51 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात 9 विकेट्स हातात आहेत. हा एक प्लस पॉईंट तर आहेच, परंतु आता शेवटच्या ओव्हरचा थरार आहे. 6 बॉल्स आणि 7 धावांची आवश्यकता. आदित्य भोईरच्या हातात चेंडू. सामन्यामध्ये अजूनही रंगत आहे. आदित्य भोईर ज्या प्रकारे त्यांनी पहिलं षटक टाकले तसंच षटक हाताळलं तर निश्चित रूपानं या ठिकाणी सुमित कुमार अँड कंपनी टेंभवली संघ देखील विजय प्राप्त करू शकतो. विजयाच्या आशा त्यांच्या देखील पल्लवीत आहेत, परंतु काम थोडं कठीण असणार आहे कारण 2 सेट फलंदाज खेळपट्टीवर आहेत. किरण ऑन स्ट्राईक. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटवर घेता आला नव्हता, परंतु विकेट कीपरकडून चूक घडली आहे. एक धाव लाख मोलाची आहे. बाईचा इशारा पंच करतायत. स्ट्राईक रोटेट झाली आहे. स्ट्राईक केतन म्हात्रेकडे. चांगला बॉल होता. विकेट कीपरला हा चेंडू गॅदर करता आला नाही. त्याचा फायदा उचललाय म्हात्रे बंधूंनी. 1 धाव अतिशय वेगानं त्यांनी पूर्ण केली. समीकरण बदललंय. 5 चेंडू शिल्लक, 6 धावांची आवश्यकता. एवन जोडी वाकलन संघाला. मोठं टार्गेट 58 धावांचं, परंतु खूप चांगला रनचेस दाखवलाय आतापर्यंत वाकलन संघाच्या फलंदाजांनी. केतन म्हात्रे 33 धावांवर खेळतोय. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस बॅकफुटला जाऊन हॅमर केला. चेंडू हवेत आहे. ओ स्वीपर कव्हरला, फिल्डर पर्यंत बॉल कॅरी झाला नाही आणि बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. हा चौकार. खूबसूरत पंच किया था, गेंद के ऊपर जाकर दूर से फ्लैशी पंच किया था और गेंद 4 रनों के लिए. अब जीत की सुगंध खुशबू लगती हुई एवन जोड़ी वाकलन को. भिवंडीच्या क्रिकेट रसिकांना मंत्रमुग्ध करून टाकलंय केतन म्हात्रेनं. फिल्डरनं प्रयत्न केला, मात्र थोडेसे प्रयत्न अपुरे पडलेत आणि बॉल अडवण्यासारखा होता. झेल स्वीकारता आला नाही, मात्र बॉल अडवणं गरजेचं होतं. धावसंख्या 56, 2 धावांची गरज. यावेळेस शफल करत असताना इम्प्रोवाइज पद्धतीनं हुक केलाय बॉल आणि बॉल सीमा पार. हा विजयाचा षटकार केतन म्हात्रेच्या बॅटमधून. वाकलन संघ विजयी. बिग एंड केतन म्हात्रे को 43 रन नॉट आउट. व्हाट अ इनिंग फ्रॉम कोहिनूर ऑफ वाकलन. व्हाट अ इनिंग फ्रॉम बाइकर ऑफ महाराष्ट्र. कॉन्ग्रेचुलेशन नीलेश पाटिल एंड शुकेश डाकी ऑल्सो. आपकी टीम आज रात अपने नाम कर गई है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच, द बाइकर मैन ऑफ महाराष्ट्र, द कोहिनूर ऑफ वाकलन केतन म्हात्रे. वो जल्दी इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें सेमीफाइनल खेलना है. खार्डी और आरसीसी पेट का जो मैच हो रहा है दिनकर सेठ ट्रॉफी में. अनेक सामने जिंकलेले आहेत केतन म्हात्रेने. अनेक सामने जिंकून दिलेत वाकलन संघाला, परंतु हा विजय त्यांच्यासाठी स्पेशल असेल कारण या आधीचे 8 सामने या 2 संघांदरम्यान जे झाले होते ते सर्व टेंभवली संघाने जिंकले होते, परंतु आज वाकलन संघानं बाजी मारली आहे आणि सामन्याचा हिरो ठरलाय केतन म्हात्रे. सामनावीराचा पुरस्कार आपण देतोय पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते. मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी. वेल प्लेड केतन म्हात्रे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मॅच. नाबाद 43 धावांची इनिंग्स, फक्त 15 बॉल्समध्ये 58 धावांचं मोठं टार्गेट होतं. अंडर फ्लड लाईट्स ते सोपं देखील नव्हतं, परंतु दमदार फलंदाजी केतन म्हात्रेची. या स्पर्धेमध्ये आपण सामनावीराच्या ज्या आकर्षक ट्रॉफीज देत आहोत, स्वर्गीय दामोदर लक्ष्मण भोईर यांच्या स्मरणार्थ माननीय श्री राम दामोदर भोईर साहेबांकडून त्या ट्रॉफीज लाभलेल्या आहेत. त्यांचे आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. चला पुढील सामन्याला लगेच सुरुवात करायची आहे. केवणी दिवे विपक्ष शेलूमाता वर्ल्ड बी संघानं टॉस जिंकलाय. प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. केवणी दिवे टीमचे कॅप्टन आपण फिल्डिंग सजवण्यासाठी आपल्या टीमला घेऊन मैदानामध्ये उतरायचं आहे आणि प्रेक्षकांना नम्रतेची विनंती आहे, आपण मैदानात थांबू नका. बघा, रॅलिंगच्या आतमध्ये देखील आपण बसू नका. रेलिंगच्या पलीकडे जाऊन, बॅरिगेटच्या पलीकडे जाऊन आपण सामन्यांचा आनंद लुटायचा आहे. खूप चांगले स्टँड्स तुमच्यासाठी उभारण्यात आलेले आहेत, त्या स्टँड्समध्ये जाऊन आपण सामन्यांचा आनंद लुटा.
या स्पर्धेसाठी जे दाते आम्हाला लाभलेले आहेत त्यामध्ये सन्माननीय मनीष वसंत म्हात्रे साहेब यांचे आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. माजी सरपंच गुंतवली ज्यांच्या माध्यमातून विजेता आणि उपविजेता संघांसाठी आकर्षक ट्रॉफीज पुरस्कृत करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सेमी फायनलिस्ट संघांसाठी देखील त्यांच्या माध्यमातून ट्रॉफीज देण्यात आलेल्या आहेत. त्याबद्दल मनीष म्हात्रे साहेब यांचे आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. थँक्यू सो मच. स्पर्धेतील सर्वात मोठं आकर्षण अर्थातच प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी बाईक दिली जाणार आहे आणि या बाईकचे पुरस्कर्ते आहेत भरोडी गावचे प्रसिद्ध उद्योगपती लँड लॉर्ड ऑफ भरोडी मोसम पाटील साहेब. त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. बाळ्यामामा चषक 2023 एक नेत्रदीपक स्पर्धा, अतिशय विलोभनीय स्पर्धेचं आयोजन सुमित कुमार अँड कंपनीच्या माध्यमातून आणि याच दरम्यान वळपाडाचे विद्यमान उपसरपंच सन्माननीय वैभव रामदास पाटील साहेबांचं शुभ आगमन या क्रीडा नगरीमध्ये होत आहे. त्यांचं आम्ही करतोय हार्दिक हार्दिक स्वागत. पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. तसेच सन्माननीय जाकी शेठ यांचं देखील शुभागमन झालेलं आहे मंचावर. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. यस, वैभव पाटील साहेब अर्थात जाकी शेठ यांचं आगमन झालंय व्यासपीठावर. शेळू माता वर्ल्ड बी संघ आता मैदानामध्ये खेळणार आहे आणि त्यांच्या फलंदाजांसाठी स्वर्ण संधी आहे. सलग 6 षटकार जर त्यांच्या फलंदाजांनी ठोकले तर जाकी शेट यांच्या माध्यमातून 2000 रुपयांचं रोख पारितोषिक देण्यात येईल. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय शेळू माता वर्ल्ड बी संघाकडून. विकास भोईर साहेब माजी